Hello friend, good morning. Last presentation we have seen the problems on issue of shares at discount. This problem is a different problem. First of all, I request to you, please share this presentation, subscribe this presentation and click on the bell icon. So let us start our presentation. If any problem, uh, you may call me on my mobile number, that is 9881480582, and my email is sukeshdhemre@gmail.com. So welcome friend. The problem, in this problem, pro rata allotment, forfeiture and reissue of shares. पहले तो हमने तीन मेथड देखे हैं, एट पार की, एट प्रीमियम की और एट डिस्काउंट की. बट दिस थ्री मेथड्स and their problems are very simple problem, but in this problem we see the pro rata allotment. What is pro rata allotment? Pro rata allotment means अगर कंपनी शेयर इशू करती है और उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, जितने शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, तो कंपनी के सामने एक तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करना, जो ज़्यादा आए हुए एक्सेस एप्लीकेशन आए हुए हैं, और नहीं तो वो एप्लीकेशन में से कुछ लोगों को देना शेयर्स, मीन्स प्रोपोर्शन इन रेशियो. तो ये सिचुएशन हम इस प्रॉब्लम में देखने वाले हैं. तो ये री इशू ऑफ शेयर्स है और इशूड एट प्रीमियम का प्रॉब्लम है. देखो प्रॉब्लम क्या है. फिफ्थ प्रॉब्लम है, तन्वी कॉर्पोरेशन issued for public subscription 20,000 equity shares of ₹100 each at a premium of ₹20 per share, payable as follows: on application ₹20, on allotment ₹50 including premium, on first call ₹20, on final call ₹30. Application were received for 30,000 shares. Allotment were made pro rata to the applicants for 24,000 shares. The remaining applications being refused, money overpaid on application was utilized towards sum due on allotment. In next para, Megha, to whom 800 shares were allotted and failed to pay the allotment money, and Pooja, to whom 1,000 shares were allotted and failed to pay the two calls. These shares were subsequently forfeited after the final call was made. All forfeited shares were sold to Varsha as fully paid up at ₹80 per share. Show the journal entries in the books of Tanvi Corporation Limited. Friends, now in this problem, company issued 20,000 shares. Okay, share price ₹100 at a premium of ₹20, means the share is issued as ₹120, and this 120 amount is called on application ₹20, on allotment ₹50. ये अलॉटमेंट पे इंक्लूड प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम. प्रीमियम कितनी है? ₹20. सो 50 में से 20 प्रीमियम है, तो रिमेनिंग कितने है? ₹30. सो ₹30 एंड ₹20, ऐसे ₹50 ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल ₹20 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹30. ये इंस्टॉलमेंट है. अभी एप्लीकेशन कितने हैं? एप्लीकेशन में रिसीव्ड 30,000 शेयर्स. देखो शेयर्स 20,000 इशू किए हैं, एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 30,000. अलॉटमेंट वेर मेड
pro rata to the applicants for 24,000. कितने लोगों को प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है? 24,000 शेयर्स को. 30,000 एप्लीकेशन है, 24,000 को 20,000 शेयर्स इशू किया है. बचे कितने? 30,000 माइनस 24,000, 6,000. सो remaining shares which are rejected, remaining shares which are rejected, 6,000 shares were 6,000 applications were rejected. अभी Megha is a shareholder, she hold 100 shares. मेघा ने 100 shares होल्ड किए हैं and she failed to pay the allotment money. दूसरी एक पूजा है, उसने 1000 शेयर्स उसको अलॉटेड किए हैं, होल्ड किए हैं उसने, और उसने 2 कॉल्स दिए नहीं है एंड ये पूरे शेयर्स उन्होंने अलॉटमेंट मनी मेघा ने नहीं दी, पूजा ने कॉल मनी नहीं दी. इसलिए डायरेक्टर ने डिसीजन लिया कि इन दोनों के शेयर फोरफिटेड किए जाए, जब्त किए जाए. फिर दिस शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड. फोरफिटेड कब किए हैं? फाइनल कॉल मेड करने के बाद. एंड ऑल फोरफिटेड शेयर वेयर सोल्ड टू वर्षा. और ये जो दोनों के फोरफिटेड शेयर किए, जब्त किए हैं, उनके शेयर्स री इशू किए हैं वर्षा को. एंड पर शेयर री इशू प्राइस इज ₹100 per share. So this is the problem, friends. In this problem you must understand the some important point. Which important point? I write in your screen. Tanvi Corporation issued 20,000 shares at the rate of ₹100, ₹20 प्रीमियम. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, कि शेयर की फेस वैल्यू क्या है, वो प्रीमियम का है क्या, प्रीमियम का है तो कितनी प्रीमियम है? ₹20 प्रीमियम. एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए? 30,000. प्रोराटा अलॉटमेंट कितना है? 24,000. 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं और अलॉटमेंट कितने एप्लीकेंट्स को किया है? 24,000. इसका मतलब रिजेक्टेड एप्लीकेशन कितने हुए ये तो प्रॉब्लम में दिया नहीं, मगर वी कैन फाइंड आउट. कैसे निकालना है? एप्लीकेशन रिसीव 30,000, उसमें से प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है वो डिडक्ट करो. 30,000 माइनस 24,000 कितने बचे? 6,000. सो 6,000 एप्लीकेशंस वेयर रिजेक्टेड. देन एप्लीकेशन 20 है, अलॉटमेंट 50 है, ऑन फर्स्ट कॉल 20 है, ऑन फाइनल कॉल 30 है, ये तो आपको पता ही है. देन मेगा ने 800 शेयर होल्ड किए हैं, उस फेल हुई है. अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वो दिए नहीं उसने, तो फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. दूसरी जो होल्डर है पूजा है, पूजा ने होल्ड किए 100 शेयर्स, शी इज आल्सो फेल टू पे 2 कॉल्स. उसने अलॉटमेंट दिया है मगर 2 कॉल्स दिए नहीं है. एंड दिस 100, 1,000 and 800 means so friend, मेघा और पूजा के 1,000 and 800 total shares, 1,800 shares are reissued to Varsha at the rate of ₹80 per share. एक यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, 1,600 लिखा है, प्रिंट मिस्टेक है, so 1,800 समझिए उसको. So this is the important point, friends. Now application entry, दो एप्लीकेशन की एंट्री है, एक एप्लीकेशन मनी रिसीव, दूसरी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर. रिसीव की एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट कितने 6 लाख एंड एप्लीकेशन कैसे मिले हैं 6 लाख शेयर एप्लीकेशन। सो जितने एप्लीकेशन आए हैं उतने एप्लीकेशन की अमाउंट यहाँ लेनी है। सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6 लाख, ये ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट। कैसे कैसे ट्रांसफ़र करनी है, पहले शेयर कैपिटल को करो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल को कितनी करनी है, शेयर कैपिटल को जितने शेयर इशू किए हैं उतनी अमाउंट कैपिटल को ट्रांसफ़र करो। शेयर इशू कितने किए हैं 20,000 और पर एप्लीकेशन अमाउंट कितनी है देखिए पर एप्लीकेशन 20 है। सो 20 इंटू 20,000 4 लाख। सो कैपिटल को ट्रांसफ़र करनी है 4 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। अभी ये 80,000 कैसे आया, ये वर्किंग नोट आप देख सकते हैं। इसकी और 80,000 कैसे आया अलॉटमेंट को, जो एक्सेस एप्लीकेशन है 24,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स दिए हैं। मीन्स एक्सेस एप्लीकेशन कितने जो उसको वैलिड हम कहते हैं 4,000 एक्सेस है। सो 4,000 एप्लीकेंट्स की अमाउंट एट द रेट ऑफ ₹20 कितनी हुई 20 इंटू 4,000 80,000। और ये अमाउंट उनको हम रिफंड न करके उनके पास से और अलॉटमेंट पर कॉल पर पैसे आने हैं, क्योंकि 100 रुपीज़ जो शेयर की प्राइस है वो शेयर प्राइस हमने उनसे नहीं मांगी, उसमें से ओनली 20 रुपीज़ मांगे हैं। 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ मांगे हैं, मीन्स 80 रुपीज़ रिमेन है। तो वो 24,000 एप्लीकेंट्स को हमने जो 20,000 शेयर्स दिए हैं 4,000 एक्सेस की जो अमाउंट है वो अमाउंट उनको रिफंड ना करके उनकी अमाउंट अलॉटमेंट को ट्रांसफ़र करनी है। फिर अलॉटमेंट की जब हम अमाउंट ड्यू करेंगे तो पहले उनकी जो वो एप्लीकेशन की एक्सेस अमाउंट आई है एप्लीकेशन पर, वो जो अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र की है वो पहले हम डिडक्ट करेंगे। सो एक्सेस ऑन एप्लीकेशन जो है वो हम अलॉटमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। कितनी है 4,000 एक्सेस एप्लीकेशन एंड पर शेयर पर एप्लीकेंट्स 20 इंटू 4,000 80,000 टू बैंक अकाउंट। अब जिसको कुछ भी नहीं दिया 6,000 बचे हैं एप्लीकेशन, 30,000 एप्लीकेशन थे, 24,000 को कुछ तो भी दिया है, मीन्स प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है, मगर 6,000 एप्लीकेंट्स को हमने कुछ भी नहीं दिया, एक भी शेयर्स नहीं दिया। अभी उनको अगर एक भी शेयर्स नहीं दिया तो उनकी अमाउंट हम अलॉटमेंट पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं, उनको उनकी अमाउंट हम रिफंड करेंगे और उनको एक रिग्रेट लेटर लिखेंगे कि भाई ये बार आपको शेयर्स नहीं दिए जा सकते, अगली बार देंगे। तो उनको उनकी अमाउंट रिफंड करना है। सो टू बैंक अकाउंट कितनी 6,000 इंटू 20 मीन्स 1,20,000। ऐसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 एंड टू बैंक अकाउंट 1,20,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। ये हो गई एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र की एंट्री। थोड़ा सा ये अलग एंट्री है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र की, क्योंकि इसमें एक्सेस एप्लीकेशन है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन है, इसलिए एक्सेस एप्लीकेशन की अमाउंट अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र करनी है और रिजेक्टेड एप्लीकेशन की अमाउंट रिफंड करनी है, मीन्स टू बैंक अकाउंट। देन सेकंड एंट्री इज टू अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री ड्यू करो। प्रॉब्लम कौन सा है, प्रॉब्लम है प्रीमियम का, तो प्रीमियम की चॉइस करो। प्रीमियम की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। कितना ड्यू किया है अलॉटमेंट पे? 10 लाख ड्यू करो। कैपिटल को कितना ट्रांसफ़र करना है? 6 लाख ट्रांसफ़र करना है। सॉरी, इसमें से 10 ये हो गया, तो समझ लो 6 लाख। टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 4 लाख, 4 लाख प्लस 6 लाख 10 लाख। ओके फ्रेंड, कर लिया है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 4 लाख, ऐसे 10 लाख अलॉटमेंट पे ड्यू किए हैं, बीइंग ड्यू ऑन अलॉटमेंट। नाउ रेशियो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,83,200, 8,83,200 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब ये रिसीव की मनी कैसे आई? 8,83,000। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रिटिकल। एकदम ध्यान से सुनिए। हमने अलॉटमेंट पे ड्यू कितने किए हैं? देखो यहाँ पर ड्यू ऑन अलॉटमेंट 10 लाख। ओके, लेस, इसमें से क्या लेस किया है? एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। कितने किए हैं? 80,000। ये कौन से एक्सेस ऑन एप्लीकेशन? मैंने जो अभी पहले बताया था कि जो एक्सेस एप्लीकेशन आए थे, वो एक्सेस एप्लीकेशन की अमाउंट उनको रिफंड न करके कहाँ ट्रांसफर की थी? अलॉटमेंट पे। अभी ये अलॉटमेंट रिसीव का एंट्री है, तो इसलिए वो जो 80,000 रुपीज एक्सेस थे जो अलॉटमेंट पर ट्रांसफर किए थे, वो पहले यहाँ पर डिडक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्ट दिस 80,000 which called as excess on application। तो बचे कितने? 9,20,000। 9,20,000 तो हमको मिलने ही चाहिए। 10 लाख ड्यू किए थे, उसमें से 80,000 पहले ही मिले हैं, तो वो डिडक्ट करके 9,20,000 बचे हैं, वो तो मिलने ही चाहिए। मगर सब ने पैसे दिए, ऑल शेयर होल्डर्स हु होल्ड शेयर्स एंड ही मस्ट पे। अगर सब ने पैसे दिए तो इतने पैसे मिलते हैं। मगर है कि कोई ऐसा कि जिसने अलॉटमेंट की अमाउंट दी नहीं है? है। कौन है? मेघा है। उसने अलॉटमेंट की अमाउंट दी नहीं। तो मेघा ने कितने शेयर्स होल्ड किए थे? मेघा ने होल्ड किए थे 800 शेयर्स। उसको 800 शेयर्स दिए थे। तो 800 शेयर्स एप्लीकेशन पे कितने मांग रहे हैं हम? 50 रुपीज। सो 800 इंटू 50 कितने हुए? 40,000। 40,000 अमाउंट जो एरियस है वो मेघा ने दिए नहीं। तो कुछ लोग डायरेक्ट 9,20,000 बैलेंस है, तो 40,000 मेघा के नहीं मिले, तो वो डायरेक्ट डिडक्ट करते हैं 9,20,000 पे। तो गलत होता है। क्यों गलत होता है? बिकॉज अगर मेघा को 800 शेयर्स दिए हैं, तो मेघा ने क्या 800 एप्लीकेशन किए थे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? प्रोरेटा अलॉटमेंट। कैसा प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है? अगर 20,000 शेयर्स है, यहाँ देखो वर्किंग नोट में कैसे निकाले हैं एक्सेस ऑन एप्लीकेशन की अमाउंट। मेघा का मेघास एप्लीकेशन ऑन प्रोरेटा कितने हैं? देखो 20,000 शेयर्स है, 24,000 वैलिड एप्लीकेशन है। इसको शॉर्ट किए हमने तो 20:24 हुआ, और इसको शॉर्ट किए तो 5:6 हुआ। 5:6 का मतलब क्या है? 5 मीन्स शेयर्स, 6 मीन्स एप्लीकेशन। इसका मतलब है अगर किसी को 5 शेयर्स दिए जाते हैं तो उसको एप्लीकेशन कितना करना पड़ेगा? 6 एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो मेघा ने कितने एप्लीकेशन किए हैं? उसको 800 शेयर्स अगर दिए जाते हैं तो मेघा कितने एप्लीकेशन करती है? तो एक इक्वेशन बनाओ, 5 शेयर्स फॉर 5 शेयर्स 6 एप्लीकेशन। सो फॉर 800 शेयर्स हाउ मेनी एप्लीकेशन? ये मल्टीप्लीकेशन करो, 800 इंटू 6/5। ये अगर किया तो एप्लीकेशन आ जाते हैं मेघा के। मेघा के एप्लीकेशन हो गए 960।
अगर मेगा 960 एप्लीकेशन करती है तो मेगा को कितने शेयर्स दिए जाते हैं? 800। अगर मेगा ने 960 एप्लीकेशन किए है और उस पर 20 रुपीज एप्लीकेशन मनी दी है तो उसका टोटल कितना हुआ? 19,200। मगर मेगा के एक्चुअली शेयर्स है 800 और उसको देना कितना है एप्लीकेशन पर? 800 इंटू 20। सो 820 कितना हो गया? 16,000। मेगा के पास से आना है कंपनी को 16,000, मगर मेगा ने कितने दिए है? 19,800। क्यों दिए है? क्योंकि मेगा को लगता था कि कंपनी मुझे 960 शेयर देगी, मगर कंपनी ने दिया क्या? नहीं दिया। कंपनी ने शेयर्स कितने दिए? 800 शेयर्स। जो रिमेनिंग एक्सेस जो शेयर्स है मेगा के एप्लीकेंट्स है, वो एप्लीकेंट्स की मनी मेगा की भी उसको ना रिफंड करते हुए अलॉटमेंट को ट्रांसफर की गई है। तो मेगा बोलेगी कि मेरा एरियस इतना थोड़ा ही है, 40,000 थोड़ा ही एरियस है मेरा, क्योंकि मैंने तो पहले ज़्यादा पैसे दिए थे, 960 एप्लीकेशन शेयर्स के लिए पैसे दिए थे, आपने मुझे 800 शेयर्स दिए हैं। फिर मेरे जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसकी मनी पहले मुझे रिटर्न करो। तो वो रिटर्न एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुए है उसकी 3,200। वो फिर क्या कंपनी बोलेगी? ठीक है भाई, तुम्हारी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3,200। तो वो डिडक्ट करके बाकी की दे दो। तो 40,000 माइनस 3,200, तो कितने बचे? 36,800 बचे। तो उतनी तो अमाउंट दे दो। तो उतनी दी क्या मेगा ने? नहीं, मेगा ने उतनी अमाउंट भी नहीं दी। तो 9,20,000 जो बैलेंस है, जो मिलना चाहिए कंपनी को, क्योंकि मेगा ने एरियस मेगा का एरियस है अलॉटमेंट का, वो है 36,800। वो उसमें से डिडक्ट करो 9,20,000 में से, तो कितने बचते हैं? 8,83,200 अमाउंट बचती है। उतनी अमाउंट कंपनी को ऑन अलॉटमेंट पर रिसीव हो गई है। थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा सा केयरफुली ये वर्किंग नोट देखते रहो। अगर कुछ डाउट हुआ तो फिर मुझे फ़ोन पर या मेल पर पूछ सकते हो एनी टाइम। सो ये 8,83,200 रुपीज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देन कॉल करो, फर्स्ट कॉल है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 lakh being due on फर्स्ट कॉल। 6th एंट्री है, ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट 3,64,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,64,000। अभी 4 लाख ड्यू किया है, 3,64,000 रिसीव हुआ है, ये कैसे? तो वर्किंग नोट देख लो, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 4 लाख किया है, ओके बराबर है। मगर सबने फर्स्ट कॉल दी क्या? नहीं, मेगा ने नहीं दी, पूजा ने भी नहीं दी। फिर मेगा के शेयर्स कितने थे? 800। पूजा के शेयर्स कितने थे? 1,000। दोनों के मिला के कितने हुए? 1,800। 1,800 ये दोनों के शेयर्स है, उन्होंने ये फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। फर्स्ट कॉल मनी कितनी है? ₹20 पर शेयर। सो 1,800 इंटू 20 कितने होते हैं? 36,000। सो 4 लाख जो मांगे थे आपने, उसमें से 36,000 नहीं मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे? फिर डिडक्ट करो, 4 लाख में से 36,000 डिडक्ट करो, कितना आता है? 3,64,000 एंड दिस अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट 3,64,000 ऐसा लिखा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,64,000। देन फाइनल कॉल क्या है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख बीइंग ड्यू ऑन फाइनल कॉल। ये सिंपल एंट्री है,
फाइनल कॉल ड्यू की है हमने, कितनी है फाइनल कॉल पर शेयर, 30 रुपीज़ है। तो शेयर्स कितने हैं, 20,000 है, 20,000 इंटू 30, 6 लाख ये ड्यू की है। रिसीव की एंट्री वो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट, मगर अमाउंट कितनी आई है रिसीव की, 5,46,000, 5,46,000। अभी ये अमाउंट कैसे आई, ड्यू कितने की है, 6 लाख। किसने पैसे नहीं दिए, ये सेम जो फर्स्ट कॉल को मेघा ने और पूजा ने नहीं दिए, यहाँ पर भी उन दोनों ने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। सो कितने हुए, 1,800 इंटू 30 कितने होते हैं, 54,000। सो डिडक्ट फ्रॉम 6 लाख, 6 लाख में से डिडक्ट करो 54,000, कितने बचे, 5,46,000 बचे। तो अलॉटमेंट ये फाइनल कॉल पर कितने मिलेंगे, 5,46,000। देन अभी ये फोर फीचर करो, फाइनल कॉल हो गया। आफ्टर फाइनल कॉल क्या करना है, मेघा के शेयर्स हमको फोर फीचर करना है। तो मेघा के कितने शेयर्स है, 800 है। तो फोर फीचर की एंट्री है, फोर फीचर की 2-3 एंट्रीज मैंने दी है। कौन सी 2-3 एंट्रीज है, एक व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड एंड व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, ये 2 एंट्रीज दी है। प्रीमियम रिसीव्ड कब होती है, जब अलॉटमेंट की अमाउंट उसने दी है तो प्रीमियम रिसीव्ड। प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कब होती है, अगर अलॉटमेंट की अमाउंट ना दी तो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड की जो एंट्री है वो फोर फीचर की एंट्री हमको यहाँ पर लेना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 कैसे, क्योंकि उसके 800 शेयर्स है, इनटू पर शेयर 100, 800 इंटू 100, 80,000। शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट 16,000 कैसे, क्योंकि उसके 800 शेयर्स है, और प्रीमियम पर शेयर की कितनी है, वो 20 है, 20 इंटू 800 वो 16,000। देन टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, अभी शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना लेना है, जितने पैसे मेघा ने कंपनी को दिए हैं उतने, जितने पैसे उसने दिए उतने ही पैसे उनके फोरफिटेड करने, मीन्स जब्त करने। तो मेघा ने पैसे कितने दिए थे कंपनी को, हमने जो जब अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे थे उस टाइम हमने निकाला था। अभी बताते हैं आपको, ये देखो मेघा ने एप्लीकेशन कितने किए थे, 960, और वो एप्लीकेशन के साथ कितने पैसे दिए थे, 20 इंटू 960, 19,200, मीन्स 19,200 मेघा ने दिए थे। उसके बाद मेघा ने कुछ भी नहीं दिया, तो जितने उसने दिए उसके उतने शेयर क्या करने के, उतने अमाउंट फोरफिटेड करनी है। सो 19,200 शेयर फोरफिटेड अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मेघा का एरियस कितना है अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का एरियस भी हमने निकाला है मेघा का। वो एंट्री में 36,800 उसको देना था, मगर उसने वो नहीं दिया, तो 36,800। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का उसने कितना नहीं दिया, उसका फर्स्ट कॉल का एरियस होता है 16,000, वो भी हमने निकाला है। और उसका फाइनल कॉल का एरियस कितना है, उसका फाइनल कॉल का एरियस 24,000 है, जो उसने नहीं दिया। तो 19,200, 36,800, 16,000 एंड 24,000, ऐसे 80 प्लस 16, 96,000। ये और डेबिट और क्रेडिट साइड चेक कर लो, उतने ही आएंगे। ये हो गया पूजा मेघा का फोरफिटेड। अब पूजा है, पूजा ने 100 शेयर्स 1000 शेयर्स होल्ड किए थे, उसने भी 2 कॉल्स नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट मनी दी मगर 2 कॉल नहीं दिए, तो उसके भी शेयर्स कंपनी के डायरेक्टर्स ने फोरफिटेड किए। तो उसकी एंट्री क्या होगी, अभी इसमें जो प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड एंड प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ये जो 2 एंट्री हमने बताई थी, तो इसमें से ये एंट्री चॉइस करनी प्रीमियम अमाउंट रिसीव की।
तो प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या है, वो जो थेरेटिकल पार्ट में मैंने दी थी लास्ट पीपीटी में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट लिखना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितने उसके शेयर्स है इनटू पर शेयर प्राइस है, फेस वैल्यू है, पर शेयर 100 है, 100 इंटू 1000 1 लाख टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अभी पूजा ने कौन क्या क्या दिया, पूजा ने एप्लीकेशन दी, पूजा ने अलॉटमेंट दी, मगर पूजा ने जो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दी उसमें से पूजा की जो प्रीमियम की अमाउंट है वो अलग कर दो। सो एप्लीकेशन की 20 और अलॉटमेंट की कितनी है देखिए, फिफ्टी है, उसमें से प्रीमियम में अलग कर दो 20 रुपीज, मीन्स कितनी 30 रुपीज है अलॉटमेंट। एक्चुअल अमाउंट विच आर ट्रांसफर टू कैपिटल को हमने ट्रांसफर की है 30 रुपीज, वो लेना है हमें। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000, ऐसा बीइंग फोरफीचर ऑफ पूजा शेयर। इसमें जो फोरफिटेड की अमाउंट 50,000 कैसे है ये मैं बता रहा था, 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 30 प्लस 20 50, और उसके शेयर कितने हैं, उसके शेयर है 1000 इंटू 50 वो हो गए 50,000, ऐसे उसकी अमाउंट फोरफिटेड की जाती है। देन री इशू, अब ये दोनों के शेयर्स किसको री इशू किए, वर्षा को री इशू किए, दोनों के शेयर्स कितने हुए हैं 1800 शेयर्स हुए। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1800 इंटू 80 1,44,000, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 36,000। अब ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 36,000 क्यों लिया, बिकॉज वर्षा को जो शेयर्स री इश्यू किया है 100 का 80 रुपीज को, मीन्स डिस्काउंट पर री इश्यू किया है, 80 रुपीज मीन्स 20 रुपीज डिस्काउंट पर। अभी वर्षा को 20 रुपीज डिस्काउंट पे री इश्यू किया है और सब लोगों को प्रीमियम पे री इश्यू किया है, तो लोग क्या बोलेंगे, इसको डिस्काउंट क्यों, हमको प्रीमियम क्यों। तो जो शेयर्स फोरफिटेड किए हैं मेघा के और पूजा के, उनमें से जो फोरफिटेड अमाउंट हुए है उसमें से जो डिस्काउंट वर्षा को दिया है वो अमाउंट लेने का है। सो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 1,800 इंटू 20 36,000 लेना है, टू शेयर कैपिटल 1,800 इंटू 100, बिकॉज शेयर्स है 100 का तो 100 रुपीज ही कैपिटल को जाएंगे, 1,80,000 बीइंग री इश्यू ऑफ forfeited shares. Now friends, in this problem, इसमें ये जो इतना ट्रांजेक्शन हुए हैं इसमें कंपनी को कितना फायदा हुआ है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो भी बेनिफिट है वो बेनिफिट गेन समझा जाएगा और वो गेन कंपनी कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो 33,800 ये गेन आता है। कैसा आता है गेन 33,800, नीचे वर्किंग नोट दी गई है। मेघा के फोरफिटेड अकाउंट में थे 19,200, पूजा के फोरफिटेड अकाउंट में थे 50,000, दोनों का मिला के 69,200 हो गया। उसमें से एडजस्टमेंट कितने की, क्योंकि वह वर्षा को जो शेयर्स री इशू किए थे वहाँ 33,200 वहाँ पर कितने लिए थे देखो, वहाँ पे 36,000 लिए थे, वो जो एडजस्टमेंट है 36,000 का वो डिडक्ट करो, कितने बचते हैं 33,200 बचते हैं। ये 33,200 ये कंपनी का नेट गेन है और ये नेट गेन कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है।
So I think you understand this problem. So critical problem, but read carefully, listen carefully, and if any problem, call me or on my mail ask me. So thank you friend. Stay home, stay safe, stay online, and stay digital.